So good morning and Jai Hind students. In this video I am going to discuss the topic heating effect of electric current. That is a class 10 topic and that is probably the last topic of the first chapter, that is electricity. Okay, and also we will discuss what is electric power, what are the various formulas, okay, what is the difference between kilowatt hour and kilowatt, and what is horsepower. Okay, so let's start the video. Okay, now, see, whenever a current, that is nothing but combination, or I should say, unidirectional flow of electrons. But in actual, there is nothing like that. But we used to assume that the unidirectional flow of charges or the unidirectional flow of electrons, that is defined as current. Okay, so whenever a current is flowing through a conductor, so it gives rise to many effects. In fact, not only heating effect. For example, you might have heard of heating effect of current, which is going to just discuss right now. Second is also magnetic effect also. Okay, magnetic effect, that is our next chapter which we will be discussing. Okay, so these are the one of the common phenomena which used to arise whenever a current, suppose this is my conductor and some current I is flowing through this. Okay, so these are the various means a number of phenomena are related with this flow of current through a conductor, and one of few of them is heating effect and second is magnetic effect. Okay, once we get completed with our heating effect, and if time permits, then we will discuss the magnetic effect. Otherwise we will discuss the magnetic effect of electric current in the next chapter or in the next video. Okay, now, so what give rise to heating effect? नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस कि हीट डेवलप कहाँ से होता है जब करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है। तो देखिए, ये कॉमन सी चीज़ है कि कोई भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर नहीं होता। सुपर कंडक्टर मतलब कि जिसका नॉर्मल टेम्परेचर पे या फिर आई शुड से कोई भी कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस जीरो, ठीक है, ऐसा कोई कंडक्टर आज तक बनाया नहीं गया है। और चूंकि सुपर कंडक्टर्स होते हैं लेकिन उनका एग्जिस्टेंस काफ़ी लो टेम्परेचर पे होता है, मतलब जो कंडक्टर सुपर कंडक्टर बनता भी है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता भी है, तो वो कौन से टेम्परेचर पे होता है, काफ़ी लो, -140 और लाइक दैट। ओके, सो जिसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। इनफैक्ट जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे पढ़ेंगे तो वो उतना टेम्परेचर एक्वायर कर पाना है, उतना टेम्परेचर नॉर्मल स्टेट में डेवलप क्रिएट कर पाना, वो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। तो इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर एग्जिस्ट अभी तक तो नहीं करते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट यूज्ड टू हैपन इज दैट वी ऑल नो दैट एनी कंडक्टर विल बी हैविंग सम रेजिस्टेंस आर। ओके, इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आर होगा। तो ये रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस एक्चुअल में बोल रहे हैं, ये रेजिस्टेंस होता क्या, ये कहाँ से आता है? ये रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है, हिंड्रेंस है। दिस आर द हिंड्रेंसेस विच आर, कौन हिंड्रेंस ऑफर कर रहा है, किसकी वजह से हिंड्रेंस डेवलप हो रहा है? द मेन सोर्स ऑफ हिंड्रेंसेस आर द वेरियस इंटरएटॉमिक पार्टिकल्स एंड इंक्लूडिंग द एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड दिस कंडक्टर। ओके, so the electrons which are trying to flow from this to this, that is from higher potential to lower potential. Okay, once again I want to make it very clear. See, there are two things: direction of electric current, okay, and that is the conventional direction of current, and second is the direction of electrons. So electrons always flow from higher potential to lower potential, and we assume that our negative terminal is at higher potential. So the flow of electrons is from negative to positive, but the flow of current is taken to be from positive to negative, and that is also called as conventional because that is being followed from starting. Okay, before the discovery of electrons and protons, from that time on we used to consider that electrons used to flow from positive to negative terminal. Okay, in actual न तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं न तो प्रोटॉन फ्लो करते हैं। मीन्स अगर आपको कोई बुक ट्रांसफर करना है, ठीक है, एक बेंच से दूसरे बेंच, तो दो तरीके हैं, या तो आप खुद खड़े होकर के जाएं दूसरे बेंच पे बुक ट्रांसफर या बुक उस पे रख दें, या फिर आप अपने पीछे वाले को पास करेंगे, वो अपने पीछे वाले को पास करेगा, एंड सो ऑन। ये ह्यूमन चेन की तरह वो फाइनली बुक पहुंच जाएगा। तो एक्चुअल में जो करंट फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर, वो सेकंड वे अप्लाई करता है, ना कि फर्स्ट वे, जो कि हम लोग बुक्स में जनरली स्टडी करते हैं। फर्स्ट वे में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डायरेक्टली मूव कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है एक्चुअल में, ठीक है। ये जस्ट समझने के लिए बनाया गया है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या मतलब क्या होता है? हिंड्रेंस। ये हिंड्रेंस कौन ऑफर करता है?
सिंपल सी बात है, ये जो कंडक्टर है सपोज करिए कॉपर का बना हुआ, तो इस कॉपर के जो इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे या दूसरे भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो भी होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को जब फ्लो करने में जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, दैट विल बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ see the unit of resistance is ohms, okay, and we had a lot of discussion in our previous classes that what is resistance, how to calculate resistance on and on which factor resistance used to depend, okay. Now heat develop, what is the concept of heat आता कहाँ से है? Suppose करिए in an accident whenever there is a collision between two objects, okay, so there occurs conversion of kinetic energy into number of energy. First is sound energy, second is heat energy also, okay. heat energy का एक और collision का बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, तो जो आउटर स्पेस से मीटियोराइट्स कभी कभार हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में गिरते हैं और जहाँ पे भी गिरते हैं, ठीक है, वहाँ का जो पूरा एरिया होता है वहाँ पे जो आई शुड से मतलब कि जलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नो डाउट कि उसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी होता है जो पोटेंशियल एनर्जी में फाइनली कन्वर्ट होकर के बहुत बड़ा गड्ढे में क्रिएट करता है। उसके साथ साथ जो उसके आसपास के जो भी अगर घास फूस है या फिर पेड़ पौधे वो भी जल जाते हैं, ठीक है। वाई? इट इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी इनटू समहाउ फ्यू पार्ट ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ओके। नाउ कोलिजन हो रहा है तो हीट डेवलप होगा, मतलब कि हीटिंग या हीट की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ से आ रहा है? ये कोलिजन से आ रहा है। किसके बीच में कोलिजन हो रहा है? मतलब कि ये जो हीट डेवलप हो रहा है ये कहाँ से आ रहा है? कोलिजन की वजह से। और ये कोलिजन किसके बीच हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्लो कर रहे हैं और इस कंडक्टर के जो एटॉमिक इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, अगर मैं हीट की बात करूंगा तो मैंने अभी जस्ट बताया कि हीट कहाँ से आ रहा है? कोलिजन से। यानी कि जो फैक्टर्स ये डिसाइड करेगा कि किन किन फैक्टर्स पे कोलिजन डिपेंड कर रहा है, वही फैक्टर्स आपको हीट को भी डिपेंड करेंगे। मतलब कि जिन फैक्टर्स की वजह से कोलिजन बढ़ेगा उन फैक्टर्स की वजह से हीट भी बढ़ेगा, और जिन फैक्टर्स की वजह से कोलिजन घटेगा उन फैक्टर्स की वजह से हीट भी रिड्यूस होगा, ओके। सो फाइनली वी कैन सी दैट कोलिजन डिपेंड करते किस पे। हम लोग अब डिस्कशन करेंगे कि कोलिजन डिपेंड कर किस पे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इस कंडक्टर का, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा पर यूनिट टाइम कोलिजन होगा। मोर बी द रेजिस्टेंस, मोर बी द रेजिस्टेंस, मोर बी द रेजिस्टेंस, मोर विल बी द कोलिजन्स, मोर विल बी द कोलिजन, एंड मोर विल बी द कोलिजन, मोर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड, ओके। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इनडायरेक्टली आई शुड से मोर बी द रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्लो कर रहे हैं और जो इंटर एटॉमिक पार्टिकल जो उसके नेबर में बने हुए हैं, जिससे वो कंटिन्यूअसली बार बार टकराते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा हीट डेवलप होगा। देखिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फ्लो करते हैं आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज करिए क्लास है, उसमें 44 बच्चे प्रेजेंट हैं, मतलब 44 मैंने एट रैंडम बोला। उस 44 की क्लास में सभी सांस से या फिर आई शुड से दे आर रैंडमली मूविंग, ऑल द स्टूडेंट्स इन दैट क्लास ऑफ 44 दे आर रैंडमली मूविंग, ओके। एंड वन स्टूडेंट फ्रॉम अनदर क्लास केम एंड ही हैज टू क्रॉस द क्लास। एक बच्चा आता है दूसरी क्लास को, उस क्लास से क्रॉस करना है जिसमें 44 बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो अगर क्लास में एंट्री करेगा तो सिंपल सी बात है, बच्चे क्या है 44, वो रैंडम मोशन परफॉर्म करें, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, तो वहां पे कोलिजन होने के चांसेस हैं। और यही कोलिजन सेम उसी तरीके का कुछ सिनेरियो होता है इस कंडक्टर के अंदर भी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को जाना है हायर से लोअर की तरफ, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उनसे कोलिजन होता है और यही कोलिजन के कारण ही रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ठीक है। तो आई होप ये फैक्टर क्लियर हो गया होगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा कोलिजन, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा हीट एनर्जी वहां पे डेवलप होगा। यानी कि पहला फैक्टर जिस पे कोलिजन डिपेंड कर रहा है इज रेजिस्टेंस। इनडायरेक्टली यू कैन से दैट द फैक्टर्स ऑन व्हिच heat is depending is also resistance value, okay. Now coming to the second factor on which this collision is depending. Now one more thing, अब जो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इफ सपोज वी आर गोइंग टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ आई दैट इज करंट, इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, अगर मैं करंट की वैल्यू इंक्रीज करता हूं
ठीक है। और करंट की वैल्यू कैसे इंक्रीज करूंगा, बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर वायर से, इस पर्टिकुलर कंडक्टर से मैं आई की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, और आई का इंक्रीज होने का मतलब क्या था, हमने पढ़ा था आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, दैट इज द टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम। एक यूनिट समय के अंदर टोटल चार्ज कितना फ्लो कर जा रहा है, ठीक है। तो आई इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आप क्यू को भी इंक्रीज कर रहे हो, यानी चार्ज जो मूव कर रहा है एक गिवन क्रॉस सेक्शन से गिवन टाइम के अंदर में। और क्यू इंक्रीज करने का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो ये चार्ज कैरी करेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो चार्ज कैरी करेंगे। तो अगर आई इंक्रीज हो रहा है यानी क्यू इंक्रीज कर रहे हो आप, और क्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट सिंपली मींस यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो दैट आर फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। एंड इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो सिंपल सी बात है, पहले 8 फ्लो करते थे तो सपोज करिए 7 बार कोलिजन होता था। अब ये 8 से बढ़ करके अगर मैं सपोज करता हूँ 100 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, देन ऑब्वियसली यू कैन आल्सो से दैट कि जो कोलिजन 8 के फ्लो करने पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते थे तो 7 बार कोलिजन होता था। 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो कितने बार होगा, ऑब्वियसली मोर देन 7, मींस इट विल बी 20, 25 और इट मे बी 50 आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा चार्ज कैरी करने वाली स्पीसीज फ्लो करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा। यानी कि हमारा जो सेकंड फैक्टर है जिस पे कोलिजन डिपेंड कर रहा है वो है आई, यानी कि करंट। अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो भी हीट डेवलप ज्यादा होगा, तो भी जो पर यूनिट टाइम में कोलिजन होगा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक और चीज, आर्क पे जिस तरीके से देखिए आर मैंने बोल दिया तो उसमें ऑटोमेटिकली रो आ गया, एल आ गया और ए आ गया। इसको आप सेपरेटली काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बोला कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करने पे हीट इंक्रीज करेगा। तो डायरेक्ट सिंपल सी बात है कि आप ये समझ लेंगे कि रो, एल, ए ये तीनों का ख्याल कौन रख रहा है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस रख रहा है, ठीक है। सो द टू फैक्टर्स विच वी हैव डिस्कस्ड इज रेजिस्टेंस एंड करंट एंड बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस हीट डेवलप, heat energy जो भी प्रोड्यूस होता है that is directly proportional to Ri. Okay, now let us see one more factor is there, one more factor is there on which this current used to depend, sorry the heat developed used to develop. Now suppose this is the conductor in which the electrons are drifting, or I should say they are flowing. As per class 10th standard we used to assume that the electrons are flowing just like water used to flow in a pipe. Okay, लेकिन क्लास 12th में जाते ही आपका ये जो डेफिनेशन है फ्लो करने वाला वो गलत हो जाएगा, वो इनफैक्ट होता भी नहीं है, ठीक है। सो H का हमने डिपेंडेंसी देखा R पे, I पे। एक और फैक्टर है, सपोज करिए जितने देर के लिए आप I को फ्लो कराएंगे, जितने देर के लिए आप करंट इस पर्टिकुलर कंडक्टर से फ्लो कराएंगे, ठीक है, उतने देर के लिए सिंपल सी बात उतना ज्यादा कोलिजन होगा, ठीक है। एक तो आर है, एक आई है, दूसरी बात टाइम का भी फैक्टर आ रहा है, मतलब जितना ज्यादा देर तक आप करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा, ठीक है। और सिंपल सी बात है उतनी देर तक कोलिजन होते रहेगा, और जितने देर तक कोलिजन होते रहेगा ऑटोमेटिकली मोर हीट विल बी डेवलप। ओके, सो द थर्ड फैक्टर ऑन विच योर हीट डेवलप डिपेंड्स इज time. Okay, so overall we came to, means if I conclude this whole discussion over heat, the factors on which heat used to depend is that heat developed or heat produced depends on R, resistance, I, current, and T is the time. Okay, now the formula which we used to write, the formula for heat is H is equal to I square R T. Okay, so this is the formula which has been came on studying the various factors. Okay, और वो factors हमने just discussion किया था, मतलब मेरा मेन बेसिक पर्पस क्या था कि क्यों H I R T के टर्म में लिखा जाता है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि जो हीट डेवलप्ड होता है वो I पे डिपेंड करता है, R पे डिपेंड करता है और T पे। एक और चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पे I का स्क्वायर है और R का पावर 1 है, ठीक है ना, T का पावर 1, यानी कि जितना चेंज आप R को इंक्रीज करोगे तो भी हीट डेवलप इंक्रीज होगा, और I को इंक्रीज करोगे तो भी हीट डेवलप इंक्रीज होगा। लेकिन जितना चेंज हीट प्रोड्यूस में होगा जब आप I को इंक्रीज करोगे दैट विल बी मोर, मतलब I को इंक्रीज करोगे और हीट में जो चेंज होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू व्हेन यू इंक्रीज R।
मतलब आर को आप 2 टाइम्स करोगे तो हीट डेवलप 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, लेकिन आई को अगर आप 2 टाइम्स इंक्रीज करो, इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई बाय 2 टाइम्स, देन द हीट प्रोड्यूस विल बिकम 4 टाइम्स. ओके, सो द आई शुड से आई इज मोर डोमिनेटिंग ओवर आर. आई यूज टू डोमिनेट द हीट प्रोडक्शन, और आई शुड से आई का जो हीट प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है कंपेयर टू आर. ओके, बिकॉज आई इज रेज टू पावर 2. अभी फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये क्लास 11th में अगर आपको टॉपिक थोड़ा बहुत आइडिया होगा डायमेंशनल एनालिसिस का, तो आप आसानी से वहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं. क्योंकि इस ये देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, जूल है, क्योंकि हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है. तो सिंपल सी बात है, इस साइड में जितने चीजें हैं उनका यूनिट कंबाइंड क्या आना चाहिए, जूल. ठीक है, और हमको फैक्टर्स पता हुआ है, फैक्टर्स पता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी वजह से मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे. ठीक है, so ultimately we got that the formula is I is equal H is equal to I square R into T. Now this same formula is having 3 different forms. Second form is H is equal to V square by R into T, and third is V into I into T. Okay, so all these 3 कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है ये सिचुएशन बताएगा आपको. जैसे कि सपोज करिए आपका सीरीज में सर्किट है, रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, तब वहाँ पे आप ये यूज करोगे, क्योंकि सारे रेजिस्टर से जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सीरीज का कॉम्बिनेशन है और सीरीज में आई करंट जो होता है वो सेम रहता है. सो दिस फॉर्मूला वी जनरली यूज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ पे वोल्टेज का टर्म है, और वोल्टेज किसमें सेम रहता है भाई, that used to remain same in case of parallel combination. Okay, so parallel combination में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. और लास्ट आता है VIT, वोल्टेज इनटू करंट टू टाइम. ये कब यूज करेंगे, जब आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू न दिया हो. ठीक है, आपको टोटल वोल्टेज दे दिया है, टोटल करंट दे दिया है, तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ये कोई सीरीज पैरेलल के लिए यूज नहीं होने वाला है. ये वेरिएबल द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉट गिवन. ओके, सो इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. ओके, ये कैसे आए, ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्मूले कैसे आए हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो V इज इक्वल टू आई आर होता है. ठीक है, तो I की जगह पे अगर मैं V बाई आर सब्सिट्यूट करता हूँ तो ये मेरे को फॉर्मूला मिल जाएगा. ठीक है, अब ये I जैसे I इंटू आई आर इंटू टी, इसको लिख सकता हूँ ना इस फॉर्मूले को. अब आई आर क्या होता है, V होता है, तो ये फॉर्मूला लास्ट वाला आ जाएगा. ठीक है, सो आई होप द डेरिवेशन मीन्स एक अगर पहला अगर आपको आ गया तो बाकी दोनों को से आप डेराइव कर सकते हैं आसानी से, अगर ओम्स लॉ आपको पता है तो. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक टू बी कवर्ड इज टुडे इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पावर. ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? वी ऑल नो दैट इन क्लास 9th से भी आप लोग आ रहे हो, तो क्लास 9th में आप लोगों ने पावर का डेफिनेशन पढ़ा होगा. व्हाट इज पावर? ओके, power is nothing but the work done per unit time, the rate of doing work, किस रेट से आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो, the rate of doing work, that is defined as power. Okay, so the work done per unit time, that is defined as power. Okay, now since the unit of work done is joule and this is the unit of time is second, so it is having unit, means power is having unit of joule per second, or this is quantity or this unit is given a special name that is defined as watt. Okay, so watt is nothing but joule per second, so unit of power is watt. Either you say it to be watt, either you say it joule per second. Okay, both are correct. Now power in case of, see work done is, एक और चीज वर्क डन, और वर्क डन कुछ नहीं एनर्जी होता है. ठीक है, तो अगर मैं वर्क डन की जगह पे एनर्जी भी लिख दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, work done is nothing but a form of energy only. Okay, that is used for doing fruitful work, force into displacement. So energy by time, that is defined as power. Now if you have to find out what is the electric power, what are the formulas, or what is electric power? Okay, electric power is nothing but जो heat energy develop हो रहा है, heat energy dissipated या heat energy जो भी produce हो रहा है या जो भी वो आपका मशीन कंज्यूम कर रहा है divided by time. ठीक है, तो जितने भी 3 फॉर्मूले थे मेरे, I स्क्वायर आर टी, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी और V इंटू आई इंटू टी, ये तीनों ही किसके फॉर्मूले भाई, तीनों हीट एनर्जी के फॉर्मूले. ठीक है, अगर मैं तीनों को 1 by 1 न्यूमरेटर में रखता हूँ, नीचे में क्या है मेरा टाइम. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तीनों में ही टाइम का कंपोनेंट है,
और वो टी और ये नीचे वाला टी क्या हो जाएगा, कैंसिल ऑफ। यानी कि जब इन सारे में से मैं टी रिप्लेस कर दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, इन सारे फॉर्मूलेज में से जब टी रिप्लेस कर दूंगा, रिप्लेस करने का मतलब क्या है, मैंने आई स्क्वायर आर टी को यहाँ पे रखा, टी टी कैंसिल, मैंने वी स्क्वायर बाई आर टी को रखा, टी और टी कैंसिल, मैंने वी आई टी को रखा, ये टी और टी कैंसिल, ठीक है। तो अल्टीमेटली यू विल गेट फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर आर एंड वी आई। सो ऑल दिस थ्री आर नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाई आर इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला एंड वी आई इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अगेन बात ये आती है कि तीनों को कब कब यूज करना है। तो मैंने बात बताया, आई स्क्वायर आर सीरीज में, वी स्क्वायर आर पैरेलल में, और वी आई इन जनरल जब वोल्टेज दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया और करंट आपको दे दिया है तो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पावर एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। नाउ वन मोर टॉपिक which I have written here is the difference between kilowatt hour kWh and kilowatt. Okay, so kilowatt hour, as the name is indicating, kilowatt is power and h is, hour means time, so power into time is nothing but energy. Okay, power into time is nothing but energy, and kilowatt is nothing but power. So the main difference between kilowatt hour and kilowatt hour में देखो, जब आप बोलते हो किलोवाट आवर तो दो चीज बोल रहे हो, पावर बोल रहे हो और दूसरा चीज टाइम। और पावर इनटू टाइम क्या होता है, एनर्जी तो होता है, जस्ट जिससे पहले भी मैंने जो फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। किलोवाट क्या होता है, वो पावर होता है। सो किलोवाट आवर दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड किलोवाट दैट इज द यूनिट ऑफ पावर। आई होप द डिफरेंस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ 1 किलोवाट आवर, इफ आई से दैट 1 किलोवाट आवर, किलोवाट का मतलब कितना हो गया, 10 raised to the power 3, किलोवाट का मतलब कितना होगा, 10 raised to the power 3 वॉट इंटू 1 आवर, ठीक है। अब इसका ध्यान से देखिएगा ना, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे 10 raised to the power 3 जूल पर सेकेंड, क्योंकि वॉट को भी मैंने जस्ट स्टार्टिंग में बताया था, वॉट को हम जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है। यस, एस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली कितना आएगा, 3600 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, दैट मीन्स 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल। ओके, so one of the most important result is that in 1 kilowatt hour, that is the unit of energy, how much energy is there, 3.6 into 10 raised to the power 6 joule. Okay, and 1 kilowatt, that is nothing but the unit of power. Okay, वो सीधे सीधे आपको पता है कि that is equal to 10 raised to the power 3 watt. Okay, so this was all about the difference between kilowatt hour and kilowatt. One more thing, जो भी हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका जो हम लोग बिल पे करने जाते हैं तो वहाँ पे रीडिंग किलोवाट आवर के टर्म्स में ही होता है। इनफैक्ट 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं, क्योंकि जब बिल पे करने जाते हैं तो पूछते हैं भाई कितना यूनिट बिल आया, ठीक है। तो उस यूनिट के अकॉर्डिंग और जो पर यूनिट कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका बिल का जो प्राइस होता है वो डिसाइड होता है। नेक्स्ट इज हॉर्स पावर। ओके, हॉर्स पावर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ पावर। ओके, हॉर्स पावर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ पावर ओनली, एंड इनफैक्ट अगर आप ध्यान दिए होगे तो ये पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे, ठीक है। हॉर्स पावर इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ पावर ओनली, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ओके, ये हॉर्स पावर में हम लोग जितने बड़े बड़े इंजन होते हैं या फिर मोटर होते हैं, ठीक है, तो उसको जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली जो खेती किसानी में जो मोटर हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं भाई मेरे को 2 हॉर्स पावर का मोटर लगाना है, या मेरे को इतना मेरा खेत है, इतना एरिया है खेत का, उसमें कितने हॉर्स पावर का मैं मोटर लगाऊंगा तो वो आसानी से इरिगेट हो जाएगा, ठीक है। तो हॉर्स पावर इज जनरली यूज फॉर एक्सप्रेसिंग द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स और मैकेनिकल मशीन्स। ओके, बट रिमेंबर दिस 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ओके, so this was all about your heating effect of electric current. Now the next topic is magnetic effect of current. Magnetic effect of electric current. Okay, in this we will discuss only what is a magnet. Okay, or I should say what are the magnetic field lines and what are the various what is magnetic field and all. Okay, so coming to the basic definition of what is a magnet. Okay, because before we start this topic we need to understand what is magnet. Okay,
So in fact you can define magnet in a number of ways using its properties, and that properties you all know since childhood, because we all have played with magnets since childhood. बचपन से हम लोग मैग्नेट्स के साथ, चुंबक के साथ खेलते हैं हुए हैं, ठीक है। तो there are many phenomena. For example, the most common two things which we know from our junior classes is that कि magnet used to have two poles, north pole and south pole, and like charges, ओके जिस तरीके से चार्जेस में लाइक चार्जेस यानी सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरीके से अगर दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, सपोज आई एम हैविंग अ मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड दिस इज आल्सो हैविंग साउथ पोल नॉर्थ, सो अगर ये और ये दो सेम पोल्स को मैं अगर पास में लेके आऊंगा तो यहाँ पे होगा रिपल्सन, ठीक है, और दो लाइक मतलब अनलाइक पोल्स यानी कि अगर ये नॉर्थ हो जाए और ये साउथ हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अट्रैक्शन, ठीक है। और दूसरी बात ये भी आप पढ़े होंगे कि जैसे ही एक मैग्नेट टूटता है वो ऑटोमेटिकली दो नए मैग्नेट्स के फॉर्म में डेवलप हो जाता है, ठीक है। जैसे इस मैग्नेट को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो ये साउथ नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो न्यू पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। सो मैग्नेट कैन बी डिफाइंड एज अ, अगर मैं लोकल वे में या बहुत जनरल डेफिनेशन दूं तो जनरल डेफिनेशन ही आपको फॉलो भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिक डेफिनेशन जो है डोमेन थ्योरी जिसको कहते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेट बनते कैसे हैं एक्चुअल में, डोमेन थ्योरी जो है वो क्लास 12 में आप पढ़ोगे हायर स्टडीज में, ठीक है। तो जो जनरल डेफिनेशन है मैग्नेट का, दैट इज डिफाइंड एज, मैग्नेट इज डिफाइंड एज अ पीस ऑफ मटेरियल, okay, as a piece of material which used to have two poles, north pole and south pole, and it attracts all the ferrous material, or I should say magnetic material, okay. So magnet can be defined as a piece of material which is having two poles, north pole and south pole, and it used to attract the ferrous material. Ferrous means all those alloys, iron alloys, or I should say magnetic material, okay. So नेक्स्ट टॉपिक विच वी शुड डिस्कस मीन्स नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपको मैग्नेट क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक बात आती है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन उसका जिसका हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो रिपल्शन होता है या फिर अट्रैक्शन होता है, ठीक है, चार्जेस के केस में भी, चार्जेस के केस में भी और यहाँ पे मैग्नेट के केस में भी हमको पता है कि जब दो लाइक पोल्स एक पास एक तरफ मतलब रखे जाते हैं तो वो रिपेल करते हैं। और ऐसा नहीं, अगर ये सपोज करिए एक मेरा मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है तो दूर से ही मीन्स इनफैक्ट इन दोनों के बीच में जब डिस्टेंस होगा और ये नॉर्थ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इस मैग्नेट को जब मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके चिपकाऊंगा, इसको पास लेकर के आऊंगा तभी ये रिपेल करेगा। इनफैक्ट दिस मैग्नेट, अगर इस मैग्नेट को मैं टाइटली होल्ड करके रखा हूँ तो ये जो मैग्नेट है इस पे रिपल्शन फोर्स ये यहीं से फील करने लगेगा, ठीक है। या फिर अगर सपोज करें ये आपका साउथ पोल है तो ये मैग्नेट ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, मीन्स रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन इस दूसरे मैग्नेट को, इस मैग्नेट को मैंने पकड़ के रखा, ये सपोज करिए मैग्नेट है इसके पास में लेके आ रहा हूँ या यहीं पे, तो अगर सेम पोल है तो अट्रैक्ट करेगा, सॉरी रिपेल करेगा, और अनलाइक पोल्स हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इस मैग्नेट को कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो मैग्नेट है उसका जो फेस है वो नॉर्थ का है या फिर साउथ का है, क्योंकि अगर ये नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है तभी रिपल्शन होगा, ठीक है, और ये साउथ है तो भी रिपल्शन होगा। तो अब बात क्या थी कि ये मैग्नेट्स लिविंग एलिमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है नहीं या लिविंग बींग्स तो है नहीं कि इनके पास आंख होगा कि भाई ये इसका भी नॉर्थ है तो मेरे को दूर भागना है, या इसका साउथ है तो मेरे को इसके पास जाना है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, या क्या रीजन है, किसके बेसिस पे ये मैग्नेट डिसाइड करते हैं कि वी हैव टू मूव अवे, मतलब रिपल्शन होना है और कब अट्रैक्शन होना है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स, ओके, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स वी ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड को समझाने के लिए मैं बहुत ही एक बेसिक चीज की हेल्प से मैं एनालॉजी क्रिएट करके समझाऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि इस मैग्नेट का जो रिपल्शन था, अगर मैं इस मैग्नेट को हाइड कर देता, ठीक है, इस मैग्नेट को मैं हाइड कर देता और इस मैग्नेट को अगर मैं पास लेकर के आता, रिपल्शन होता, ये समझ जाता मैं कि यहाँ पे भी कोई मैग्नेट रखा हुआ है, यानी कि जो रिपल्सिव फोर्स है या फिर जो अट्रैक्टिव फोर्स है
वो आपको ये एडवर्टाइज कर रहा है कि यहाँ पे भाई दूसरा मैग्नेट है। इसको आप देख नहीं रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन जब इसको पास या दूर ले जाने पे हो रहा है, वो इनडायरेक्टली दैट indirectly repulsive and attractive forces are telling you that a second magnet is lying here. Okay, so let us start the thing with let us start the topic जिसके हेल्प से हमको ये एनालॉजी क्रिएट के मैं समझाऊंगा। ठीक है, सपोज करिए दिस इज अ वेरी बिग लेक। ओके, वन स्टूडेंट इज हियर एंड सेकेंड स्टूडेंट इज हियर। व्हाट इज दिस फर्स्ट स्टूडेंट डिड, ये पहला स्टूडेंट क्या करता है, पत्थर लेता है, इसको यहाँ पे फेंक देता है। ठीक है, तो चूंकि सेकंड स्टूडेंट इसको देखा नहीं, ठीक है, तो ये जैसे ही जिस मोमेंट पत्थर फेंकेगा इसके साइड में वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इनफैक्ट आप देख सकते हो कि ये कुछ कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में होंगे, ये इस साइड में नहीं आएंगे वेव्स। ठीक है, जहाँ तक लेक वहीं तक ही आएगा। ओके, सो ये मेरा पॉइंट था जहाँ पे स्टोन मैंने ड्रॉप किया है, स्टोन। ओके, ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने स्टोन ड्रॉप किया है। ये वेव्स जनरेट हुए हैं, रिपल वेव्स जनरेट हुए हैं या वाटर वेव्स जनरेट हुए हैं, किसके वजह से, ड्यू टू थ्रोइंग स्टोन इन दैट लेक। अब ये लेक में से ये स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, इसके वजह से मतलब वो ऑब्जर्व नहीं किया कि भाई स्टोन पड़ा हुआ कि नहीं, मतलब कि ये स्टोन टोटली अनअवेयर है इस बात से कि स्टोन, कोई भी स्टोन लेक में फेंका गया। लेकिन कुछ देर में ये जो वेव्स हैं ये ट्रैवल करते हुए यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यही वेव्स ट्रैवल करते हुए यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बच्चा है अब देखेगा कि जैसे ही वाटर में मोशन हो रहा है, लेक में मोशन हो रहा है, लेक में रिपल वेव्स जनरेट हुए हैं, यानी कि इसको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लेक में कोई पत्थर जरूर फेंका है। ठीक है, यानी कि इसको ये पता नहीं था, दिस स्टूडेंट वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दिस स्टूडेंट हैज थ्रोन अ स्टोन, बट आफ्टर ऑब्जर्विंग द रिपल वेव्स, आफ्टर लुकिंग एट द रिपल वेव्स जनरेटेड ड्यू टू throwing that stone in water, he came to know that obviously कुछ ना कुछ लेक में गिरा है या फेंका गया, तभी जाकर के रिपल वेव्स जनरेट हुए हैं। ये सिचुएशन हमारे सेम मैग्नेट की तरह केस में, जहाँ पे मैं एक मैग्नेट को हाइड कर दे रहा था और दूसरे मैग्नेट को जब पास लेके आ रहा था या दूर लेके जा रहा था, जहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा था, तो वो ये इनडायरेक्टली बता दे रहा था कि भाई जो चीज़ मैं छुपा के रखा हूँ अपने हाथों के अंदर, जो दूसरा मैग्नेट, ठीक है, वहाँ पे भी एक मैग्नेट है। ठीक है, तो these waves are indirectly advertising the presence of this stone. Okay, these ripple waves are indirectly advertising the presence of this small stone inside, or that a stone has been thrown in the lake. ठीक है, तो इनडायरेक्टली कंक्लूजन क्या निकलता है, जिस तरीके से पत्थर को पानी में फेंकने पे रिपल वेव्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से, और ये वेव्स इसके होने का पता बता रहे हैं। मतलब अगर ये वेव्स जनरेट हो, सिंपल सी बात है, तभी जनरेट होगा जब कुछ ना कुछ पत्थर या कुछ भी चीज़ पानी में गिरा हुआ होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट 2 को पता चला। उसी तरीके से जब 2 मैग्नेट आपके आसपास हैं और एक का होना मतलब रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जब भी कोई एक मैग्नेट अपने स्पेस में होता, मतलब कभी भी अगर मान लीजिए सपोज करें, इसको मैं मिटा करके ये कहूँ कि जब कोई मैग्नेट होता है अपने एक स्पेस में, तो ये अपनी स्पेस में एक अपना फील्ड जनरेट करता है या एक लोकल वेव्स पैटर्न सेट करता है। ठीक है, ये जस्ट इमेजिनरी चीज़ है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि रिपल वेव्स तो रियलिटी में होती हैं, क्योंकि वो देख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको समझा जा सकता है एनालॉजी क्रिएट करते हुए। तो जब भी कोई मैग्नेट होता है, वो ये समझा जा सकता है कि भाई वो अपने एरिया में अपना वेव जनरेट कर रहा है। ठीक है ना, ये लोकल वेव्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, इस अपने नियर बाई एरिया में एक लोकल वेव जनरेट कर रहा है। ठीक है, और ये वेव्स पता लगाते हैं, और ये वेव्स जब दूसरे मैग्नेट तक पहुंचते हैं तो उस मैग्नेट को पता चलता है कि भाई यहाँ आसपास में कहीं दूसरा मैग्नेट है। ठीक है, तो दीज लोकल वेव्स, ये जो लोकल वेव्स होते हैं, जो कि एक मैग्नेट, दिस लोकल इमेजिनरी वेव्स, आई शुड से लोकल इमेजिनरी मतलब ये टोटली एक कहानी है, आई शुड से, जस्ट टू एक्सप्लेन। ओके, ना तो कोई ऐसा वेव होता है, ना तो कोई एक ऐसा रियलिटी में कोई चीज एग्जिस्ट करता है। सो दिस लोकल इमेजिनरी वेव्स
that are surrounding a magnet, okay, that are surrounding a magnet, that help in to finding its location, or that indirectly these waves used to advertise the position of this magnet. That waves, that local imaginary waves are called as magnetic field lines, okay. ये जो इमेजिनरी वेव्स जनरेट हो रहे हैं जो कि मैग्नेट के होने का पता बताते हैं दूसरे मैग्नेट को, इन्हीं वेव्स के कारण जब दूसरा मैग्नेट एंट्री करेगा तो उसको ये वेव्स का पता चलेगा कि अच्छा मैं ये, जब वो मैग्नेट ऑब्जर्व करेगा, या फिर मतलब ऑब्जर्व करने का मतलब नहीं कि मैग्नेट का आंख मुना कर, जब उसको रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स का पता लगेगा तब उसको पता चलेगा कि नहीं भाई मेरे एरिया में कोई ना कोई मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो लोकल इमेजिनरी वेव्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि जिस एरिया में ये जो नियर बाई एरिया है, ये जो पास का एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मूव करते हैं या जो सराउंडेड होता है, ठीक है, उसी एरिया को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, एक और चीज, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो ताकत होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, वो भी दूर होते जाएगा। इसको आप एनालॉजी से भी समझ सकते हो, जैसे जो पत्थर फेंका था मैंने पानी में, ठीक है, जो पत्थर मैंने पानी में फेंका था, स्टोन विच आई हैव थ्रोन इन द वाटर, आप देखिए वो स्टोन के पास में जब वो इनिशियली जो वेव्स जनरेट होते हैं काफी पास होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो दूर मूव करते हैं जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो वेव्स यहाँ पे, जो इस वेव्स के पास एनर्जी है और जो एनर्जी इसी वेव्स के पास यहाँ पे था वो काफी डिफरेंट है, यहाँ पे कम एनर्जी, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो एक और चीज, जैसे जैसे आप देख सकते हो कि जो वेव्स दूर होते हैं वैसे वैसे जो डिस्टेंस होता है ये भी इंक्रीज होते जाता है। यहाँ पे डिस्टेंस कम था और जैसे जैसे बढ़ते गए वहाँ पे जो डिस्टेंस था वो भी बढ़ते गए, ठीक है। तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, okay, that is clear to all of you. And one more time I am making you to remember that ये waves जो मैंने local imaginary waves जिसको मैंने नाम दिया है वैसा कुछ होता नहीं है, this is just for explaining the concept, or I should say the phenomena of repulsion and attraction. Okay, so in today's class I will end here. In the next video I will be coming with the concept of, means what are the properties of magnetic field lines, okay. And after that we will discuss that when current is flowing through a conductor, so what is the direction of magnetic field, okay, and what are the various properties of magnetic field lines. Thank you.